تو شوہر نبض سمجھتا ہے بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے. آپ نے کبھی نبض سمجھنے کی کوشش کی؟ نبض پڑھیے، پہچانیے. ہر چیز عورت منہ سے نہیں کہتی ہے. اللہ کے رسول کس طریقے سے اپنی بیوی کے ساتھ رہے. ناراض ہو گئی ام عائشہ. ایک بار اللہ کے رسول کے پاس کھجور آیا تو اکیلے نہیں کھا رہے. عائشہ ناراض ہیں، پہل خود کر دی. عائشہ لو کھاؤ. اب غصے میں نہیں کھاؤں گی، بھوک نہیں. چہرہ پھر اللہ کے رسول ادھر سے آئے ادھر آ گئے. عائشہ چلو غصہ تم لو کھاؤ. انہوں نے چہرہ ادھر کیا تو اللہ کے رسول اٹھ کے ادھر آ گئے. ہم لوگ ہوتے اور ناراض ہوتی ہماری بیوی تو کیا ہوتا؟ صحیح بتانا. جرجی صاحب نے کہا لو کھاؤ. اب وہ غصے میں کہا ہاں میں نہیں کھانا. ہم تھوڑی ادھر آئیں گے. جیسے چہرہ ادھر گھمایا منہ پکڑ کے کھا رہی کہ نہیں کھا رہی، نخرے مت دکھا جاتا. ایک تو منا رہا ہوں تجھے، چل کھا لے. ہمارا رہن سہن یہ ہے. اللہ کے رسول وہاں جاتے ہیں. عائشہ محبت کا انداز دیکھو. عائشہ لو، کائنات کا امام اپنی بیوی کو منا رہا ہے اور بیوی کو منانے سے کوئی چھوٹا نہیں. یاد رکھو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کو منانے سے ہماری شان گھٹ جائے گی، لوگ جوروں کے غلام کہیں گے. ان کا رانچی کے پاگل خانے میں ان کا علاج کریں. جو بیوی کو منانے میں یہ سمجھتا ہے کہ میری شان گھٹ جائے گی تو معاف کرنا، وہ اور شان و شوکت میں تو شاہجہاں نہیں. کائنات کا امام بیوی کو منا رہا ہے. اللہ کا پیارا نبی بیوی کو منا رہا ہے. اور اللہ کے بعد جس کا مقام و مرتبہ سب سے بڑا ہوگا. لو کھاؤ. عائشہ غصہ تو انہوں نے پھر ادھر چہرہ کر لیا. میں نے کہا نا کہ مجھے بھوک نہیں لگ رہی ہے. ادھر آ گئے. اب گلے میں ہاتھ ڈال لیا سر پہ. عائشہ نہیں کرو، منہ کھولو. اب آپ یہ بھی نہیں کہہ رہے لو، اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ منہ کھولو. چلو کلی بسم اللہ، چلو اللہ کا نام لے کر کھاؤ. حضرت عائشہ بھی جانتی کہ زیادہ نہیں کہلوانا چاہیے. ایک دو بار ہو گیا، 3 بار سے زیادہ ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ بھی اب مان گئی، لیکن طنز بھرا جملہ پھر بھی کہہ دیا. اللہ کا نام لکھاؤ. ایسا لگ رہا ہے جیسے اس سے پہلے میں اپنے باپ کا نام لے کے کھا لیا. ہنسنے لگی. شیطان کسی چیز سے میں ہم نے آگ لگائی اور یہ ایک دم من گئے. شیطان کو سب سے زیادہ اللہ کے رسول کہتے ہیں دیکھا نہیں مرد ہٹ تو کیا ہوتا؟ وہ ادھر ٹیڑھی تو ہے ہی عورت، اور ہم اور چھوڑ دیتے تو طلاق پہ نوبتیں نہیں آنے کی. بھائیو مناؤ. اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ساتھ جب چل رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، ایک باغ، ایک جنگل سے گزر ہو رہا ہے، باغ سے، حدیقہ، گارڈن سے. تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی چلو ذرا دوڑتے ہیں کون آگے نکل جائے. اللہ کے نبی دوڑے، حضرت عائشہ دوڑی، دونوں دوڑے. عائشہ آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے عائشہ اللہ کے نبی آپ تو ہار گئے، میں جیت گئی، میں کامیاب ہو گئی، میں جیت گئی. آپ نے کہا جی کوئی بات. آپ جانتے ہیں بیوی جیتی تب بھی میری خوشی، میں جیتا تب بھی میری خوشی، لیکن بیوی جیت گئی خوشی ہو رہی. 3-4 سال کے بعد پھر اسی راستے سے گزر ہو رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا عائشہ کچھ یاد آیا؟ ہاں آیا. جہاں ہم لوگ 4 سال پہلے دوڑے تھے. ہاں. حضرت عائشہ کہتی چلیے پھر دوڑ لگاتے ہیں، دیکھیں کون آگے نکل جائے. پھر دوڑے. اب اللہ کے نبی آگے نکل گئے، عائشہ پیچھے رہ گئی. عورت کو خوشی ہو رہی ہے تو غصہ بھی بہت جلدی آتا ہے، یہ فطرت ہے. اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کچھ نہیں. اچھا وہ پیچھے رہ گئی اس لیے. آپ نے کہا عائشہ دیکھیے سمجھ گئے، شوہر وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی کا چہرہ پڑھ لے. سمجھ گئے. آج بیچاری پیچھے رہ گئی ہے اس لیے تکلیف ہو رہی. آپ نے کہا عائشہ پہلے تم کیوں آگے نکلی تھی معلوم ہے کیوں؟ پہلے تو پتلی دبلی تھی اس لیے دوڑتی ہوئی آگے نکل گئی. 4 سالوں میں تم نے کھایا ہے، مدینے کے کھجوروں نے تمہیں تھوڑا موٹا کر دیا ہے، پہلے سے تمہارا وزن تھوڑا بڑھ گیا ہے، اس لیے پیچھے رہ گئی. بھی اللہ کے نبی سمجھ رہے ہیں کہ وہ خوشی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ نے کہا عائشہ اس میں غصہ ہونے کی کیا بات؟ ایک مرتبہ تم جیتی، ایک مرتبہ میں، میچ گرا، فائنل ہم لوگ دوڑیں گے ہی نہیں کہ کسی کو تکلیف ہو. اب عائشہ نے دماغ لگایا ماشاءاللہ تو صحیح ہے، ایک مرتبہ میں بھی تو جیت چکی ہوں، ایک مرتبہ آپ، ابھی تو برابر ہوا. تب تو شوہر نبض سمجھتا ہے بیوی کس بات سے خوش ہوتی ہے. آپ نے کبھی نبض سمجھنے کی کوشش کی؟ نبض پڑھیے، پہچانیے. ہر چیز عورت منہ سے نہیں کہتی ہے. ایک بار غصہ بھی آیا اللہ کے رسول کو اور کسی بات پر غصہ ہو کر قسم کھا لی کہ میں 1 مہینے تم لوگوں سے بات نہیں کروں، کسی بیوی سے ہم نہیں ملیں گے. قسم کھا لی. 1 مہینے قسم پورا کرنے کے لیے آپ اوپر چڑھ جاتے، نماز پڑھ کے آئے اور چھجا تھا وہاں لکڑی کا تخت، اسی چلے جاتے تھے، اسی سے نہیں. 29 دن ہو گئے، مغرب کی نماز پڑھ کے آئے. کہا عائشہ السلام علیکم، لاؤ کھانا وانا لاؤ، کیا بنایا؟ حضرت عائشہ کھانا لے کے آئیں، لیکن 29 دن کے بعد پھر طنز مار رہی. کیا کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے نبی آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی، آج تو 29 دن ہوئے ہیں، صبر نہیں ہوا. یہ عورت کی فطرت ہے، وہ کچھ نہ کچھ کہے گی، اور مرد کی فطرت یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اپنی عورت کی سننا چاہیے. دیکھیے ہم کتنی اچھی بات بتا رہے ہیں، آپ یہاں سے سیکھیے. اللہ کے نبی سے کیا کہا؟
حضرت عائشہ نے آج تو 29 ہی دن ہوئے ہیں, مغرب کے بعد آ گئے, کھانا لائیے. آپ نے تو 1 مہینے کی قسم کھائی تھی کہ میں بات نہیں کروں گا, صبر نہیں ہوا, 29ویں دن بولے تو اللہ کے رسول نے ایسا جواب دیا, عائشہ چپ ہو گئی. آپ نے کہا عائشہ مہینہ 29 کا بھی تو ہوتا ہے, اور دیکھو چاند ہو گیا ہے, یعنی مہینہ ختم. مغرب میں ہم چاند دیکھا گیا, مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے, اور آج 29 کا چاند ہوا ہے, یعنی مہینہ ختم. میں نے 1 مہینے کی قسم کھائی تھی, مہینہ پورا ہو گیا. اچھا چاند ہو گیا. یہ ہے میاں بیوی کے درمیان تعلقات. میرے بھائیوں, ان کو بگڑنے مت دیجیے. لوگ چاہیں گے, کوششیں کریں گے بگاڑنے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا ہوئی. فَإِنَّ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ, عورت کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے. وَإِنَّ أَعْوَجَ مَا فِي الضِّلَعِ أَعْوَجَ, اور پسلیوں اعلاہ, ان اعوج ما فی الضلع اعلاہ, اور پسلیوں میں سب سے اوپر والی پسلی سب سے ٹیڑھی ہوتی ہے. یہ پسلی اوپر والی ٹیڑھی ہوتی ہے. ایسے جب آپ اس کو نکالیں گے کاٹ کے تو یہ پسلی ایسی نکلے گی, ایسے. آپ اس کو سیدھا کرو گے نہیں ہوگی, کریے ایسے کریں گے اتنی ہوگی بس, اور کریں گے ٹوٹ جائے گی, سیدھی نہیں ہوگی. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو ٹوٹ جائے. مطلب سمجھ رہے ہو کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے. جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے, عورت بھی ٹیڑھی رہے. پسلی سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. عورت کو پوری طرح سدھارو گے تو سدھرے گی نہیں, طلاق لے لے گی لیکن سدھرے گی نہیں, ٹوٹ جائے گی. یعنی طلاق ہو جائے, لیکن ہم عورت پوری طرح سدھر ہی نہیں سکتی. قرآن مانے میں عورت پوری طرح نہیں سدھر سکتی, اس لیے ٹیڑھا ہی رہنے دو اور اس کے ٹیڑھے پن کو برداشت بھی کرو. اللہ کے رسول نے آپ سے کہا ہے, یہ نہیں کہا زبردستی سیدھا کرو, کیونکہ اگر زبردستی سیدھا ہونے والی ہوتی تو اللہ کے نبی کہہ دیتے سیدھا کرو. لیکن زبردستی سیدھا کرو گے تو سیدھی تو ہوگی نہیں, ٹوٹ جائے گی. تو زبردستی سیدھا کرنے سے بھی اگر ٹوٹ رہی ہے, طلاق ہو رہی ہے, اور بچے آپ کے الگ الگ ہو رہے ہیں, تو یہ صورت مت آنے دو. کچھ چیزیں برداشت, اور کچھ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں. عورت ہیں آج کہہ رہی ہوگی مر جائے مولوی کمینے نے ٹیڑھا رکھا ہے, تیری بیوی بھی ٹیڑھی ہوگی. ہاں ہے تو کیا کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں میں آپ کو یہاں ڈانٹتا ہوں, گھر میں ہم کو بھی سننا پڑتا ہے. اور کون ایسا آدمی ہے جس کو اپنے گھر میں نہیں سننا پڑتا ہے؟ بتائیے تو. یہ پارلیمنٹ میں جتنے بیٹھے ہیں یہ کرتے ہیں, وہ کریں, کیا کریں, گھر میں سب سنتے ہیں, سب کو سننا پڑتی ہے اپنے. بلکہ ان نیتاؤں کی, ان کی بیویاں جتنی نگرانی کرتی کسی کی نہیں کرتی. بار بار پوچھتے ہیں کہاں ہو, ان کو معلوم ہے یہ نیتا ہے نا کسی اور کے ساتھ نہ لگا ہوا ہو, اس لیے بار بار پوچھتی کہاں ہو. کہ صاحب یہ پان والے کی, اچھا میری بات کرانا ذرا, بڑا عجیب حال ہے, شک ہے. اچھا میں فلاں کی دکان پہ ہوں, ذرا جوتا خرید رہا ہوں, اچھا ذرا جوتے والے سے میری بات کرانا. جوتے والا فری میں مزے لے رہا ہے, ابھی میری نیتا کی میں بات کرنے کو مجھے مل رہا. عجیب عجیب صورتحال پیدا ہو گئی, نگرانیاں ہو رہی ہیں, سب کو سننا پڑتی ہے. حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی آئے اپنی بیوی کی شکایت لے کر, دروازہ کھٹکھٹایا, سوچا گھر کے اندر ہے, وہ باہر بیٹھ گئے, ابھی نکلیں گے. حضرت عمر بیٹھ گئے. وہ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, گھر میں آوازیں آ رہی ہیں. ان نے کان لگایا جو دروازے سے, تو کیا دیکھ رہے ہیں, عمر فاروق کی بیوی عمر پہ برس رہی ہے. چلے جاتے ہو, بیٹھے رہتے ہو خلافت میں, ادھر گئے. کھانا کون لے کے آئے گا, پکنے کو کون لے کے آئے گا, بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کی پڑھائی, بچوں کا کھانا پانی, بچوں کے کپڑے لتے, کیا ہے تمہیں کوئی فکر ہے؟ جب دیکھو غریبوں کی پیچھے لے کے رہتے ہو. کون ضرورت مند ہے, دوسروں کی ضرورت پوری کر رہے ہو, اپنے گھر کی فکر نہیں. حضرت عمر سن رہے, گردن یہ کیا کریں گے, دور ہماری شکایت, ہم تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آئے, یہ کیا کریں. موڑ کے چلا گیا, جانے لگا. حضرت عمر فاروق تھوڑی دیر کے بعد نکلے, دیکھا وہ جا رہا ہے, اس کو بلایا, آواز دے گئے, مسٹر کیا تم آئے تھے کہ ہاں, کس لیے, کچھ نہیں, وہ اب میں جا رہا ہوں. تم کچھ شکایت نہیں, اب میں جا رہا ہوں. بتاتے کیوں نہیں ہو, آئے تھے شکایت لے کے چل دیے, کچھ بات ہو تو بتاؤ نا. کیا بات ہے, میں امیر المومنین ہوں, لوگوں کا خادم ہوں, آپ کی کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, بتاؤ کیا ضرورت ہے. کہنے لگا امیر المومنین انسان کے لیے آیا تھا, وہ کام آپ کے بس کا نہیں ہے. میرے بس کا نہیں, کہا وہ میں دیکھ لیا, مجھے جانے دیجیے. ہوا کیا یہ تو بتاؤ. کہا امیر المومنین میری بیوی میرے اوپر روز چڑھ جاتی ہے, ڈانٹتی ہے, پھٹکارتی ہے, الٹا سیدھا بولتی ہے. میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا, لیکن دیکھ رہا ہوں, کان لگا کے سنا تو آپ کی بیوی آپ کو ڈانٹ رہی ہے, الٹی گنگا بہ رہی ہے. آپ کچھ بول ہی رہے, آپ سن رہے, چپ چاپ خاموش بیٹھے. 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا بھی اپنی بیوی کی سن رہا ہے. تو شکر منائے کہ اس بیوی ہے نہیں, ورنہ آدھی پریشانیاں دور ہو گئی ہوگی. کیونکہ جو آدمی بیوی کی پریشانیاں سہ چکا ہو, وہ آدمی جانتا ہے پریشانی کیا ہے. اس لیے جس کو گھر میں پریشان کرنے والی بیوی نہیں ہوتی, وہ دوسروں کو پریشان کرتا ہے. دیکھنا اس جملے کو کیسے ایڈٹ کریں گے لوگ, دیکھیے گا اس جملے کو کیسے بنائیں. مولانا, اس جملے کو جانتے ہو کیسے لکھیں گے, مولانا نے
मोदी को इस तरीके से इसी चीज से मुझे डर लगता है, इसीलिए न ज्यादा मंत्र पढ़ रहा हूँ न मेरा नाम ले रहा हूँ। ये हालत है मेरी। मैं नहीं चाहता था कि मैं समझौता करूं, लेकिन करना पड़ रहा है मुझे हालात के साथ। इतना तो कोई नहीं कर। तो मेरे भाइयों, अब वक्ती तौर पे एक बात आ गई, मैंने कह दी। अब इसका ये मतलब थोड़ी कि आप उसका फोटो मेरे फोटो के साथ बना देंगे। मौजू ये होना चाहिए कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, ये होना चाहिए। एक ये मौजू ना होकर क्या मौजू होगा, मौलाना ने मोदी को ललकारा, ये बनाते हैं। अब बताइए, इसको जब लाखों लोग देखेंगे तो जो उसके फैन है क्या कहेंगे? कहीं कहीं जरूरी नहीं है कि हम बिहार में बोले तो बिहारी पर मुकदमा हो। कोई भी आदमी कहीं भी मुकदमा दायर कर रहा है, ये कानून। बिहार में होंगे तो चलो आप लोग निपटा लोगे, बंगाल में होंगे तो चलो ममता दीदी हैं, लेकिन कहीं और अगर हो गया और जहाँ भी कोई नहीं आता साथ। मैंने सबको देखा सुनते वक्त, मौलाना आप ये नहीं बोले, आज पता नहीं है, आज इसको नहीं बोले। बहुत कहने वाले मिलेंगे। जब परेशानियां आती हो तो मुझे कोई साथ नहीं, यकीन मानना। अगर मेरा नहीं उनसे मिलने नहीं आए, क्यों आईडी मेरे पीछे लग जाए। मौलाना चर्ची से इसके क्या ताल्लुक है, ये भी मिलने गया। सबको देख लिया है। आपको भी मशवरा देता हूँ, जो कुछ भी करना है अपने बलबूते पे करना है। ये मत सोचना कि आपको परेशानी आई, आप कभी जेल में चले गए, दूसरे आपकी मदद करेंगे। दूसरों पर कभी भरोसा मत। आपके अंदर अपनी कैपेसिटी हो, बर्दाश्त करने की अपनी क्षमता हो तो आप कदम उठाइएगा, नहीं तो दूसरों के भरोसे। हजरत उमर फारूक ने कहा कि आप तो खुद ही परेशान, मैं जा रहा हूँ। हजरत उमर ने कहा शादी हो गई, बच्चे हैं, बच्चे किसके हैं? उसने कहा मेरे। दूध किसने पिलाया? बीवी। दूध पिलाने का पैसा दिया? कहा नहीं। खाना कौन पकाता है? बीवी। कहा तुम्हें मालूम है बच्चे बाप के होते हैं, अगर माँ उसकी दूध ना पिलाए तो आप जबरदस्ती दूध नहीं पिलवा सकते। अगर माँ ये कहे बीवी कि मुझे आपके बच्चे को दूध पिलाना है, मुझे इतना रुपया महीना चाहिए, तो आपको उतना रुपया महीना देना पड़ेगा। दूध दिया तुमने? नहीं। कहा वो हमारे बच्चे को दूध पिला देती है। ऐसा नहीं, बच्चे आपके हैं, पेशाब करें तो आप धुलाओ, लेटरिन करे तो आप धुलाओ। कौन धुलाता है? अगर वो ये कहे कि आपके बच्चे ने गंदगी की, आप धुलाइए, आप ही को धुलाना पड़ेगी, लेकिन वो धुला देती है। खाना कौन बनाता है? बीवी। का जब निकाह हुआ था तो तुमसे खाना पकाने की शर्त नहीं थी, उसमें यह था कि इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारे साथ निकाह किया जा रहा है, क्या तुमने कबूल किया? इतने इतने रुपए मेहर के बस तुम्हारे निकाह में, अलावा नान नफका, तुम्हारे निकाह में फला की बेटी के साथ तुम्हें निकाह हो रहा है और पढ़ा दिया गया, क्या तुमने कबूल किया? अलावा नान नफका। 5,000 रुपए मेहर, 10,000 रुपए मेहर, अलावा नान नफका। 2 तोले सोना, अलावा नान नफका। ये होता है 4,000 रुपया, 2,000 रुपया मेहर, सिक्का राइजुल वक्त, अलावा नान नफका। ये लिखा जाता है रजिस्टर पर। अलावा नान नफका का मतलब जानते हो? अलावा यानी 5,000 रुपए, ये तो नकद आपको देना पड़ेगा बीवी को जो मेहर है। अलावा नान नफका, अलावा नान नफका का मतलब रोटी और कपड़ा और खर्चा, कपड़ा खर्चा, दवा, ये सब आपकी जिम्मेदारी है। खाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपकी बीवी खाना नहीं बनाती है तो आप जबरदस्ती नहीं बनवा सकते। कल खाना पका नहीं, वो कह सकती है नहीं हम नहीं पकाएंगे, जाओ क्या करेंगे? खाना पकाना बीवी की जिम्मेदारी नहीं। बच्चे अच्छे धुलाना भी ठीक है, हमको बता दिया ये चीज, कहीं मेरी बीवी को मत बता दे, हम जाके सुन लेंगे थोड़ी बहुत बातें। अगर ये बता दिया तो सर पे चढ़ जाएगी, कल से खाना भी हमें बनाना पड़ेगा, पेशाब खाना भी हमें बनाना पड़ेगा। ने कहा कि जब वो सब शर्त देती है थोड़ी सुन लिया करो, थोड़ी सुन लिया करो, इतना भी नहीं सुन सकते हो? कहने नहीं सुन लूंगा, थोड़ी नहीं, अब तो जितनी सुनाएगी उतनी सुन लिया करो। ठीक है, आपने मुझे बता दिया, खाना पकाने से तो बेहतर है, पेशाब पैखाना धोने से तो बेहतर है, सुन ली। दूसरी चीज, और अपने माँ बाप की नाफरमानी कभी मत करो। माँ बाप का दर्द हमें था, बोल भी रहा था, हदीस में वला तउकन्न वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी नहीं। भैया अब बैठ जाओ, अब किसी को जो उठे बगल वाला उसको जबरदस्ती बिठा, पेशाब लग रहा है तो यही कर लो, लेकिन अब जाने मत देना, बहुत हो गया ये नाटक। वला तउकन्न वालिदैक व इन मराकन तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना, चाहे वो तुम्हें अपने घर से निकल जाने का हुक्म ही क्यों न दे दें, और अपने बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म ही क्यों न। बीवी बच्चों को छोड़ने का हुक्म देना छोड़ दो, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, घर मकान से निकाल दे, भाग, मेरा घर नहीं, तुझे एक जमीन नहीं दूंगा, निकल भाग, हर बार छोड़ देना, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी, ये है माँ बाप का दर्जा। कौन बेटा ये कबूल करेगा? लेकिन हक ये है माँ बाप का। एक सहाबी अपनी माँ का को तवाफ करा रहे हैं कांधे पर बिठाकर। हजरत उमर फारूक ने कहा अलैकल जन्ना, तूने अपनी बूढ़ी माँ को जो पैरों से लंगड़ी है, आंखों से अंधी है, अपने कांधे पर उठाकर खाने काबा का तवाफ कराया, तूने तो जन्नत पाली, तूने तो जन्नत हासिल कर ली, तू तो जन्नती हो। साहबी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी माँ का हक अदा हो गया? यानी अंधी है, लंगड़ी है,
اور میں اس کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر طواف کرا رہا ہوں. پیشاب پائخانہ کرتی ہے تو میں ہی اس کا پیشاب اور پائخانہ دھوتا ہوں, گندگی کو میں صاف کرتا ہوں. کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ کیا فرمایا حضرت عمر نے؟ تو نے جنت تو کما لی لیکن ماں کا حق ادا نہیں ہوا. کہا کہ اچھا پھر ماں کا حق ادا کب ہوگا؟ حضرت عمر فاروق نے کہا ماں کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا. کہا کہ کچھ نہیں, کتنا کام میں کر رہا ہوں, گندگی, غلاظت, ناپاکی, پیشاب پائخانہ سب میں دھو رہا ہوں اور اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر طواف کر رہا ہوں. کیا ابھی بھی میری ماں کا حق ادا نہیں ہوا؟ حضرت عمر نے کہا نہیں, جب وہ تجھے پیدا کر رہی تھی, جب وہ تجھے اپنے پیٹ سے جن رہی تھی اور وہ چیخ رہی تھی درد کی وجہ سے, اس کے منہ سے جو پہلی چیخ نکلی تھی درد کی وجہ سے, تجھے پیدا کرتے ہوئے درد زہ ہوتا ہے عورت کو بچے کی پیدائش پر, تو جو وہ درد ہو رہا تھا اور اس درد میں تیری ماں جو چیخی تھی, پہلی چیخ اس کے منہ سے نکلی, ابھی تو تم نے اپنی ماں کی اس پہلی آہ کو کیا تھا, تم اپنی ماں کی پوری زندگی حق کی بات کرتے ہو, نہیں کیا. اس نے کہا اب میں سمجھ گیا کہ اپنی ماں کا زندگی پر اب تک میں نے اپنی ماں کی پہلی چیخ کا حق ادا نہیں کیا. ماں کے مقام کو اور باپ کے مقام کو جب مامون رشید کا خطاب آیا تو دو, ایک باپ ایک بیٹا, دونوں گرفتار کر لیے. بیٹا کا نام ہے فضل برمکی اور اس کے باپ کا نام ہے یحییٰ برمکی. فضل برمکی اور یحییٰ برمکی دونوں کو مامون رشید نے گرفتار کر کے جیل میں ڈالا. بڑے نیک یہ باپ بہت تھا, سردیوں کے دن تھے, باپ کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا تھا تو ٹھنڈے پانی سے وضو بنانے میں اس کو تکلیف ہوئی. جیل میں گرم پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو جیل کے اندر بیٹے نے سوچا کہ میں اپنے باپ کو گرم پانی ویسے جیلر سے بات کی, اس نے منع کر دیا. ہمارے ہاں کوئی الگ سے کسی کے ساتھ الگ امتیاز نہیں ہوتا, گرم پانی کا کوئی نام. تانبے کا لوٹا تھا فضل برمکی کے پاس, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اس لوٹے میں فضل برمکی پانی بھر لیا کرتے تھے اور اپنے باپ کو سلا دیا کرتے تھے عشاء کے بعد. پھر اس پانی کے تانبے کے لوٹے میں جو پانی بھرا ہوتا تھا اس پانی کے لوٹے کو, اس تانبے کے لوٹے کو اپنے پیٹ سے لگا لیا کرتے تاکہ پیٹ کی گرمی سے رات بھر یہ لگا رہے گا تو صبح تک کچھ تو اس پانی میں گرمی آ جائے گی, تھوڑی ہی بہت صحیح, کچھ تو گرمی آ جائے گی. جب فجر کی اذان کی آواز آتی تھی تب فضل برمکی اس پیٹ سے گرم کیے ہوئے پانی کو اٹھاتے تھے اور اپنے ابو سے کہتے تھے جلدی سے وضو بنا لو. غور کیجئے, اپنے باپ کے لیے وضو کا پانی, گرم پانی دینے کے لیے رات بھر وہ جاگا کرتے تھے کہ قدرے گرم پانی ہو جائے تھوڑا بہت ہی صحیح, لیکن میرے باپ کو تکلیف نہ ہونے پائے. باپ کا اس طریقے سے انہوں نے حق ادا کیا اور سچ تو یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی باپ کا حق ادا نہیں ہوا. ماں کو پہچانو, باپ کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے تو وہ شکار کھیلنے گئے تھے. اسماعیل کی بیوی نے جب دروازہ کھولا تو نہیں جانتی تھی یہ سامنے میرے سسر ہیں, ابراہیم میرے شوہر کے باپ ہیں, وہ نہیں جانتی تھی. پوچھا اسماعیل کہاں گئے؟ کہا وہ تو جنگل میں گئے شکار کھیلنے, کب آئیں گے؟ شام کو آئیں گے. کہا دیکھو میں شام تک انتظار نہیں کر پاؤں گا. اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر کا گزر بسر کیسا چل رہا ہے؟ کہتی بہت برا. کیوں؟ کہا صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سوتے ہیں اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکے اٹھتے ہیں, حالات ہی اچھے نہیں ہیں گھر کے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اسماعیل جب گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہہ دینا کہ ایک بزرگ آدمی آیا تھا اور اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے, چوکھٹ بدل لو. چوکھٹ سمجھتے نا, دروازے کی چوکھٹ, اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی کہتی بوڑھا سٹیا گیا, چوکھٹ تو ٹھیک, گرمیوں میں ہوا آتی ہے, سردیوں میں دھوپ آتی ہے, اس سے اچھی چوکھٹ کہاں ہوگی؟ اور بوڑھا کہہ رہا چوکھٹ خراب ہے, چوکھٹ بدل لو. ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے. اسماعیل علیہ السلام جب شام کو گھر پہ آئے تو پوری بات بتائی بیوی کہ بوڑھا آیا تھا. اچھا اس نے تمہیں سلام کہا؟ وہ سمجھ گئے کہ میرے باپ کی. اچھا اور کیا کہا؟ کہا انہوں نے پوچھا گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ میں نے کہہ دیا بہت بری. صبح کھا لو تو شام کو نہیں, شام کو کھا لو تو صبح نہیں. میری بیوی یہ تم نے غلط کہا. کیا غلط کیا؟ جیسے حالات دیکھ رہی ہوں ویسے بتا دیا میں نے سوچا شاید بوڑھا کچھ لایا ہو دے دے گا. اور کچھ کہا؟ ہاں اور کچھ بہکی باتیں کر رہا تھا, سٹیا گیا تھا. وہ کیا بہکی باتیں کی؟ کہا اس نے بہکی ہوئی بات یہ کی, کہنے لگا گھر کی چوکھٹ صحیح نہیں ہے, گھر کی چوکھٹ بدل دو. اسماعیل علیہ السلام نے ہاتھ مارا سر پہ, کہا میری بیوی وہ میرا باپ تھا اور تم نے یہ جو کہہ دیا کہ گھر کا حال اچھا نہیں ہے,
صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں، یہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر، اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے ہم ہر حال میں خوش ہیں، تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، لیکن تم نے یہ جملے نہیں کہے۔ اس لیے میرے باپ نے کہا گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں، بدل لو۔ چوکھٹ کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی ٹھیک نہیں، اس کو طلاق دے دو، اور نیک اللہ والی کسی نیک بندی سے تم نکاح کرو۔ یہ چوکھٹ جو اللہ کی نافرمان ہے، ناشکری ہے، یہ عورت جب تمہارے پاس رہے گی تو تم بھی ناشکرے بن جاؤ گے۔ بھائی میری بیوی تم مجھے بہت پیاری ہو، لیکن میرے اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، میرے باپ نے چوکھٹ بدلنے کا حکم دیا، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اتنی سی بات کہہ دی تھی کہ صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، شام کو کھا لو تو صبح نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے طلاق دلوا دی تھی اسماعیل سے۔ آج کل کی عورتیں سوچیں کہ شوہروں سے کیا کیا کہیں، کب سے فیئر اینڈ لولی نہیں آئی، کب سے کریم نہیں مل رہی ہے تمہارے گھر میں، جب سے آئی ہو کبھی آرام نہیں ملا ہے، جب دیکھو روتے رہتے ہو، جب دیکھو شکایت کرتے رہتے ہو۔ میری سہیلیوں کو دیکھو شادی میں کتنے اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتی ہیں، یہی ایک کپڑا 6 مہینے سے پہن رہی ہے، کتنی نافرمانی کرتی ہے یہ۔ اگر دیکھا جائے تو یہ تو روز طلاق کی مستحق ہے، دیکھا جائے اتنی نافرمانی کرتی ہے کہ ان کو روز طلاق دی جائے، لیکن روز طلاق دینا نہیں، روز کا کبھی تھوڑا برداشت کرنا پڑے گا۔ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو ولا تعوقن والدیک، اللہ کے ماں باپ کے اوپر پہنچ گئی، ولا تعوقن والدیک وان امراک ان تخرج من اهلک ومالک، دو چیزیں۔ تیسری چیز ولا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن من ترک صلاۃ مکتوبۃ متعمدا فقد بریت منہ ذمۃ اللہ، فرض نماز کبھی قصدن جان بوجھ کر مت چھوڑنا، جو فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اللہ رب العالمین کی اوپر سے اسی ذمہ داری اٹھ جاتی ہے، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہو۔ فرض نماز کبھی جان بوجھ کر، جنگ ہو رہی ہے لیکن صحابہ نماز نہیں چھوڑ۔ اگر 500 آدمی جنگ لڑ رہے ہیں، اذان کا ٹائم ہو گیا تو 250 لوگوں نے مورچہ سنبھال لیا اور 250 لوگ نماز پڑھنے میں مصروف ہو گئے۔ جب یہ 250 نماز پڑھ چکے تو انہوں نے مورچہ سنبھال لیا اور جو لڑ رہے تھے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ میرے بھائیوں جنگ ہو رہی ہے لیکن صحابہ نے نماز کسی بھی قیمت پر۔ جرجیس صاحب کو RSS کے کچھ گنڈے پکڑ کے باندھ دیں، پیڑ سے باندھ دیں، لاٹھی ڈنڈے برسائیں، ہاتھ پیر بندے ہیں، ابھی زندہ ہے جرجیس صاحب، اور اذان کا ٹائم ہو چکا ہے، آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جرجیس صاحب کے اوپر اب فرض ہو گیا کہ وہ نماز پڑھیں۔ یا اللہ گنڈوں نے باندھ رکھا ہے، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں ان گنڈوں سے ایک بار کہنا ہے کہ بھیا اذان ہو رہی ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے کہ میں وضو بنا کر نماز پڑھ لوں۔ اگر وہ چھوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں چھوڑتے ہیں تو بندے ہمیں نماز پڑھنا پڑے گی۔ وضو نہیں ہے، وضو کے لیے بھی آپ کے ہاتھ پیر نہیں کھولے جا رہے ہیں تو آپ کو دل میں وضو کی نیت کرنا پڑے گی کہ میں نے وضو بنا لیا۔ اگر میں کھلا ہوا ہوتا تو وضو ضرور بناتا، لیکن میں بندھا ہوا ہوں اور ان لوگوں نے مجھے وضو بنانے کے لیے پانی نہیں دے رہے ہیں، ہاتھ پیر نہیں کھول رہے ہیں۔ اے اللہ میں نے نیت سے وضو بنا لیا، میری نیت وضو کی ہے، آپ کا وضو ہو گیا۔ یہ لوگ مجھے ہاتھ نہیں اٹھانے دے رہے ہیں، میں نے بندے اللہ نیت کر لی، اللہ اکبر۔ یہ میرا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کر رہے ہیں، اے اللہ جس طرف میرا چہرہ ہے تو میرے دل کی نیت کو جانتا ہے، اگر میں کھلا ہوتا تو قبلے کی طرف چہرہ کرتا۔ اے اللہ میں کھلا نہیں ہوں، بندھا ہوا ہوں، میں اسی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، تو میری عبادت کو قبول کر لے، اسی کو میرے لیے قبلہ بنا دے۔ آپ کو اسی حال میں نماز پڑھنا پڑے گی، وضو نہیں بنانے دیا جا رہا ہے تو نیت کر لو وضو کی، وضو ہو جائے گا۔ قبلے کی طرف چہرہ نہیں کرنے دیا جا رہا ہے تو جس طرف تمہارا چہرہ اسی طرف تم جملے پڑھنا شروع کر دو، تمہاری نماز ہوگی۔ ہاتھ نہیں اٹھانے دیا جا رہا، نیت نہیں باندھنے دی جا رہی ہے، زبان سے الفاظ ادا کرتے رہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ کی نماز ادا ہو جائے گی، آپ کو رکوع نہیں کیا جا رہا، کرنے دیا جا رہا، سجدہ نہیں، ایسے ہی کہو اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہم اغفر لی
वरहमनी वहदनी वआफिनी वरज़ुक़नी। अल्लाहु अकबर, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो पढ़ा जाता वो सब ऐसे ही पढ़िए, आपकी नमाज होगी। नमाज इस हाल में भी माफ नहीं है। आपको मालूम है कि मेरी लिंचिंग हो रही है, आपको मालूम है कि गुंडे हमें नहीं छोड़ेंगे, आपको मालूम है कि मेरे ऊपर जुल्म करके मुझे मार डालेंगे, लेकिन नमाज का वक्त हो गया है। आपको इस हाल में भी नमाज पढ़ना पड़ेगी। नमाज माफ नहीं है। वला ततरुकन्ना सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन, कभी जानबूझकर मत छोड़ना। फइन्न मन तरका सलातन मक्तूबतन मुतअम्मिदन फक़द बरियत मिन्हु ज़िम्मतुल्लाह। जिस मुआशरे में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस मोहल्ले में नमाज जानबूझ के छोड़ी जाती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी उस मुआशरे से उठ जाती है, फिर अल्लाह की कोई जिम्मेदारी नहीं रही है। तीन चीजें। चौथी चीज, वला तशरबन्ना खमरन फइन्नहु रअसु कुल्लि फाहिशा, कभी भी शराब को हाथ मत लगाना, इसलिए कि ये तमाम गंदगियों की माँ है, तमाम गंदगियों की जड़ है, सारी बुराइयों की जड़ शराब है। सुनन नसई में बनी इसराइल का एक आदमी का वाकया नकल किया गया है। एक औरत ने उसको बुलाया, किसी गवाही के लिए बुलाया, लेकिन उस औरत की नीयत खराब थी। वो बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा नेक था। कई कमरों में दाखिल होने के बाद उसके कमरे में पहुंचा, सारे दरवाजे बंद हो गए। वो औरत बेवा थी, उसने कहा बोलो किस लिए मुझे बुलाया है, किसके बारे में आपको गवाही लेना है, मुझे जो मालूम होगा सच सच बता दूंगा। उस औरत ने कहा, अरे भाई इधर आओ, मैंने गवाही के लिए कब बुलाया है, फिर किस लिए बुलाया है? कहा सुनो इधर बैठो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे साथ मुंह काला करो, उदनु मिन्नी, मेरे करीब होइए और मुझसे जिना की। उसने कहा रे दिमाग सही है, इतने सालों से मैंने आज तक नमाज नहीं छोड़ी, इबादत नहीं छोड़ी, तहज्जुद नहीं छोड़ी, एक भी हमने गुनाह का काम नहीं किया, और तुम मुझसे जिना के लिए कह रही हो? नहीं। दरवाजे चारों तरफ से बंद थे, भागने का कोई रास्ता न था। सुनो, तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, नहीं तो जान जाएगी। तीन ऑप्शन, या तो मुझसे जिना करो, पहला, नहीं करते हो तो ये 6-7 साल का खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है, ये छुरी रखी हुई, इसको कत्ल करो। पहला ऑप्शन, मेरे साथ जिना करो, छोड़ दूंगी। नहीं करते हो, इस लड़के को कत्ल करो। उसने कहा ये भी बड़ा गुनाह है, मैं नहीं करूँ। इस बच्चे ने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं इसको कत्ल करूँ, नहीं कर सकता। तो उसने कहा तीसरा ऑप्शन, ये प्याले में जो शराब रखी हुई है इसको छोड़ दूं। उसने देखा कि तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन तो अपनाना है, वरना मेरी जान खतरे में है। तो उसने सोचा जिना बहुत बड़ा गुनाह है, कत्ल भी कोई कम बड़ा गुनाह नहीं है। शिर्क के बाद दूसरे नंबर पे कत्ल आता है, और कत्ल के बाद तीसरे नंबर पे जिना आता है, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। न मैं कत्ल करूंगा न मैं जिना। शराब पीना भी गुनाह है, मैं शराब नहीं पीना चाहता, लेकिन जान बचाने के लिए ये ऑप्शन उसने दिया है, तो मजबूरी है, शराब पी लेता हूँ, कम से कम जिना और कत्ल से तो कम गुनाह है। और उसने शराब उठाई, पहले प्याले में ही किया। उस औरत ने एक और प्याला पिला दिया, नहीं तुम छोड़ेंगे, दूसरा भी। उसने तीसरा भी पिला दिया, और उसके बाद उसने छुरी दी, पकड़ो इसे, मारो इसको, मारो इसको। बच्चे को खत्म। फिर उस औरत ने उसको पकड़ा, उसके कपड़े उतारे, अपने भी उतारे। सुनन नसई के अल्फाज है हदीस की किताब के कि उस आदमी ने शराब पी, और शराब ने उसको तीनों गुनाह करने दिया, यानी कत्ल भी करवा दिया और जिना भी करने पूर दिया। वरना एक जिना कर लेता, बच जाता, जान बच जाती, दो गुनाह से बच जाता, औरत भी खुश हो जाती, बाद में जाके तौबा कर सकता था। लेकिन उसने ये सोचा कि शराब कत्ल और जिना से छोटा गुनाह है, लेकिन ये नहीं समझ पाया कि शराब तमाम गुनाहों की माँ है, तमाम बुराइयों की जड़ है। इसलिए उसने शराब पी, और शराब पीकर उसने तीनों काम कर डाले। शराब पीकर शराब पिया, और शराब पीकर कत्ल किया, कत्ल के बाद जिना किया। एक काम करवाया जा रहा था, लेकिन शराब ने उससे तीनों काम करवा लिए। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब के करीब मत जाओ, कभी शराब मत पियो, इसलिए कि तमाम बुराइयों की पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। मेरा भाई वो है जो तेरा शिकंजा कस रहा है, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों को कस रहा है।
इसलिए इस्लाम लाने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ने के बाद इस्लामी रिश्ता खून के रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है। इस्लामी रिश्ते के आगे मैं खून के रिश्ते को लात मारता हूँ। आए आदि मैं तेरे कुफ्र पर लात मारता हूँ, मैं तेरी जहालत पे लात मारता हूँ, मैं लानत भेजता हूँ तेरी जहालत पर। और आज फिर मैं ऐलान करता हूँ, आए आदि मेरा भाई तू नहीं है, मेरा भाई वो है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है। इस्लामी रिश्ता खून के रिश्ते से बढ़कर होता है। मेरे भाइयों, क्या आपने कभी इस नजर से एक मुसलमान होकर दूसरे मुसलमान भाई के बारे में सोचा? नहीं, मुसलमान है, हमारे पड़ोस में भी दुकान है, हमारी भी दुकान है, हमारी दुकान कम चलती है, इसकी दुकान ज्यादा चल रही। हम कटबुल्ला के पास पहुंच गए, ताबीज दे दो, उसके कस्टमर टूट कर मेरे पास आ जाए। मौलवी ने कोई ताबीज दे दिया, रात में जाना, जमीन में गड्ढा खोदना, उसकी दुकान के सामने काट देना, उसके कस्टमर टूट कर तेरे पास आ जाएंगे। मौलवी जर्जीज 10 साल मौलवियत पढ़ा, आज तक कोई कुरान की आयत में ऐसा नहीं पढ़ा, हदीस में मैंने नहीं देखा कि मुझे ऐसी कोई दुआ मिल जाए कि तुम्हारे कस्टमर तोड़कर मैं अपनी दुकान पे ले आऊं। हमने हदीसें पढ़ी, हमने कुरान पढ़ा, हमें तो ये मिला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने ऐसी दुआएं बताई कि तुम्हारी भी दुकान चले, तुम्हारी भी चले। मेरे भाइयों, गौर करो, उस जमाने में हमदर्दी ये हुआ करती थी उस जमाने में कि मेरे भी कपड़े की दुकान है और मेरे पड़ोसी की भी कपड़े की दुकान है, मेरे 2 कपड़े बिक चुके हैं, मेरी 100 दिरहम की मजदूरी हो चुकी है, मेरी 100 दिरहम की मजदूरी हो चुकी है। लेकिन मैंने देखा कि मेरे भाई की दुकान में सुबह से शाम को कोई कस्टमर नहीं आया। अब तीसरा कस्टमर भी मौलवी जर्जीज की दुकान पर, मेरी दुकान पर आया। उस जमाने में सहाबा का मसला ये था, अब तीसरा कस्टमर मेरे सामने मेरी दुकान पर आया। मैंने सोचा 2 कस्टमरों को मैं कपड़ा दे चुका हूँ, अब क्यों ना इस बेचारे की बिक्री हो जाए, अब क्यों ना उसका घर का भी चूल्हा जल जाए। उस आदमी ने बहाना करना शुरू कर दिया, जिस टाइप का कपड़ा तुम ढूंढ रहे हो मेरी दुकान में नहीं, मेरे पड़ोस में, जाओ वहां से खरीद लो। और उस आदमी ने वहां से खरीद लिया। ये हमदर्दियां उस जमाने में हुआ करती थी और यही तालीम देकर गई जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी भी दुकान चले, तेरी भी दुकान चले। जब से ये हराम खोर मौलवी, तावीज़ और गंडे देने वाले, ये हराम खोर मौलवी, ये दल्ले मौलवी जब से पैदा हो गए हैं, तब से एक दूसरे को बिगाड़ा जाने लगा, एक दूसरे को बर्बाद किया जाने लगा, सिफली अमल करके एक दूसरे को तबाही और बर्बादी के दहाने पर, जादू और टोने करके एक दूसरे के दहाने पर ले जाया जाने लगा और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगा। मेरे भाइयों, नबी अकरम की तालीमात की तरफ आओ और अपने भाई की हमदर्दी अपने दिल के अंदर पैदा करो। जंगे यरमूक के उस मंजर पर नजर डालो, 3 सहाबी जख्मी पड़े हैं और एक सहाबी एक जख्मी भाई को पानी पिलाने के लिए जाता है, उसको उठाता है, उठ पानी पी। और जैसे उस जख्मी सहाबी ने पानी का बर्तन अपने होंठ से लगाया, उधर दूसरा चीखता है, मैं भी प्यासा हूँ, आए मेरे भाई, इनको पानी पिलाने के बाद थोड़ा सा पानी मेरे लिए पिला देना, मैं जमीन से उठने की ताकत नहीं रखता। इस आदमी ने देखा मेरे होठों पर पानी है, पिया नहीं है, इसने अपना गिलास वापस कर दिया और कहने लगा, नहीं मेरे भाई, उसको पहले पानी पिलाओ, उसको पहले पानी पिलाओ, वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये उसके पास पानी लेकर गया, अभी उसके होठों तक पानी गया कि तीसरा चीखने लगा, अगर पानी थोड़ा सा बच जाए तो मुझे भी दे देना। दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया कि वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। और जब तक ये तीसरे के पास जाता है, उसके पास पहुंचता है, वो लुढ़क जाता है जमीन पर, ये उसको सर को उठाता है, हाथ लगाता है, पता चलता है दम निकल चुकी है, अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है। लौट कर फिर दूसरे के पास आता है, दूसरा भी इंतकाल कर गया है। ये लौट कर जब पहले के पास आता है तो पहला भी आप हयात से अपनी प्यास बुझा चुका है। तीनों ने एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दी, कोई पानी नहीं पिया, मैं नहीं, तुम ज्यादा प्यासे हो। दूसरा कहता है तीसरा मुझसे ज्यादा प्यासा है। तीसरा पानी पीने से पहले ही दुनिया से चला गया। दूसरा जब तक लौट कर आया वो भी चला गया।
पहले के पास आया वो भी चला गया, ये हमदर्दियां कहाँ चली गई? मुसलमान तो एक मुसलमान के लिए अपनी जान दे देता है। आज हम जान लेने पर क्यों तुले हुए हैं? हम अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए, आखिरी वाक़े की तरफ मैं आ रहा हूँ। अल्लाह की कसम, इस साल मैंने इस तरीके की जज्बाती तकरीर अभी तक कहीं नहीं की है। ये शायद इस इलाके की ये पहली नई तकरीर हो जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सईद इब्न जुबैर एक ताबई गुजरे हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ ने इनको पकड़ने का ऐलान कर दिया। सईद इब्न जुबैर को पकड़ के लाया जाए और इनको कत्ल कर देंगे। लाओ मेरे सामने। सईद इब्न जुबैर का पता नहीं, छिपते रहे, भागते रहे। मालूम था कि हज्जाज इब्न यूसुफ मुझे कत्ल कर देगा, लेकिन कब तक छिपते? जमीन तंग कर दी गई। आखिरकार हज्जाज इब्न यूसुफ के 2 पुलिस वालों ने सईद इब्न जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। एक जगह जासूस हर जमाने में रहे हैं। हज्जाज इब्न यूसुफ के जासूसों ने पता लगा लिया और मुखबिरी कर दी और सईद इब्न जुबैर को उस घर से पकड़ लिया गया। कहीं छिपे थे। जासूसी बहुत बुरी चीज है। हमारे इस कौम के अंदर भी ऐसे जासूस होंगे, ऐसे मुसलमान हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जासूसी करके बताते होंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी मुसलमानों की कमजोरियां दूसरों को बताते होंगे। पैसे दौलत की लालच में आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। अरे लोग तो अपनी बहन और बेटियों को चकलों में बिठा देते हैं पैसे और दौलत की खातिर। दौलत। सईद इब्न जुबैर को हज्जाज इब्न यूसुफ के जासूसों ने मुखबिरी देकर हमला किया। 2 पुलिस वालों ने रंगे हाथ में। सईद इब्न जुबैर बड़े नेक थे, लेकिन रास्ता बड़ा लंबा था। सईद इब्न जुबैर ने, हज्जाज इब्न यूसुफ ने यह ऐलान कर रखा था कि सईद इब्न जुबैर को मेरे सामने लाया जाए और उनको मेरे सामने कत्ल किया जाए। इसलिए उन पुलिस वालों ने 2 पुलिस वालों ने उनको पकड़ा और बहुत ही एहतिमाम के साथ और हाथों में हथकड़ियां डालकर उनको ले जाने लगे। लेकिन रास्ता 15 दिन का था। घोड़े पर बैठ के चले, ऊंट पे बैठ के चले। 15 दिन का रास्ता था। जहां नमाज का टाइम होता, सईद इब्न जुबैर नमाज पढ़ते और फिर चल देते। इन पुलिस वालों को सईद इब्न जुबैर का अखलाक बहुत पसंद आया। उनकी दीनदारी और उनका अखलाक सईद इब्न जुबैर का पुलिस वालों के दिल में घर कर गया। इन दोनों पुलिस वालों ने सोचा, एक नेक आदमी, एक बेकसूर आदमी हज्जाज के सामने अगर ले गए तो वो उसको कत्ल कर देगा। ऐसा करो, हम लोग हज्जाज को कह देंगे हमें सईद मिले ही नहीं है और हम लोग सईद की हथकड़ियां खोल देते हैं और एक नेक आदमी, बेगुनाह आदमी को क्यों हम उसकी जान के पीछे पड़े? इसको छोड़ देते, ये भाग जाए, कहीं भी चला जाए। हम लोग ये कह देंगे कि हमें मिला ही नहीं। दोनों पुलिस वाले इस बात पर एग्री हो गए। अब जो चीज आईना में दिखाना चाहता हूँ वो देखिए। ये दोनों पुलिस वाले सईद इब्न जुबैर से कहने लगे, आए सईद इब्न जुबैर, तुम्हारे अखलाक ने, तुम्हारी दीनदारी ने, तुम्हारी इबादत ने मुझे मौन कर दिया है। मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो और मैं तो सिर्फ हज्जाज का हुक्म मानकर तुम्हें गिरफ्तार करने आया था। मैंने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैंने तुम्हें हज्जाज के सामने पेश कर दिया तो हज्जाज इब्न यूसुफ तुम्हें कत्ल कर देगा। आए सईद, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, तुम जंगल के रास्ते से भागते भागते छुप छुपा कर किसी तरीके से इस मुल्क के बाहर निकल जाओ, सलामत रहोगे। सईद इब्न जुबैर ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं भाग, तुम अगर छोड़ोगे तो मैं जाऊंगा और अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो फिर मैं भागने की कोशिश नहीं करूंगा। उन लोगों ने सईद इब्न जुबैर की हथकड़ी छोड़ दी, हथकड़ी खोल दी और कहा, सईद तुम जाओ, हम हज्जाज इब्न यूसुफ से कह देंगे कि हमें सईद इब्न जुबैर मिले ही नहीं। सईद इब्न जुबैर ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सईद इब्न जुबैर ने अभी 10 ही कदम रखे थे किसी जंगल की तरफ, किसी खेत की तरफ। न जाने उनके दिमाग में क्या आया, तो लौट कर आए और उन दोनों पुलिस वालों के पास फिर आ गए और कहने लगे कि मेरे हाथ में हथकड़ी डालो, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं भागूंगा नहीं। मुसलमानों गौर करो, नौजवानों सोचो, भागने का पूरा मौका मिल गया,
लेकिन 10 कदम गए, लौट के आए, कहने लगे हथकड़ी डालो और मुझे लेके चलो। उन पुलिस वालों ने कहा, आए सईद, अपने आप को मौत के मुंह में क्यों ढकेल रहे हो? मैं जानता हूं कि हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा, हज्जाज मार डालेगा। सईद इब्न जुबैर कहते, वो मुझे भी मालूम है कि वो मुझे कत्ल कर देगा। पुलिस वालों ने कहा, फिर तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? मैंने तुम्हें छोड़ दिया। सईद इब्न जुबैर रोते हुए कहते हैं, आए पुलिस वालों, मैं इसलिए नहीं भाग रहा हूँ कि मैं भाग तो जाऊं, इस मुल्क से बचकर निकल भी जाऊं, लेकिन एक न एक दिन सईद इब्न जुबैर ने कहा, आए पुलिस वालों, अगर किसी दिन हज्जाज को ये पता चल गया इन दोनों पुलिस वालों ने सईद को पकड़ लिया था और फिर उन्होंने इसको छोड़ दिया, तो आए पुलिस वालों, हज्जाज इब्न यूसुफ के जुल्म के आगे फिर तुम दोनों कत्ल कर दिए जाओगे, तुम दोनों मार डाले जाओगे। जासूस उसके चप्पे चप्पे पर है, जब मेरी जासूसी कर सकते हैं तो तुम्हारी जासूसी क्यों नहीं कर सकते? अगर किसी जासूस ने ये कह दिया पुलिस वालों ने सईद को छोड़ दिया, हज्जाज तुम दोनों को कत्ल कर देगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जान बच जाए और तुम दोनों को मेरे बदले में कत्ल कर दिया जाए। सईद इब्न जुबैर ने फिर अपने आप को कैद करवाया। पुलिस वालों ने कहा निपट लेंगे, कहा नहीं। पुलिस वालों ने कहा सही तुम जाओ, कहा नहीं, तुम दोनों की जान को खतरे में डालकर अपनी जान को बचाना ये इस्लाम ने नहीं सिखाया है। बिलाखिर सईद इब्न जुबैर को पुलिस वालों ने उनकी जिद के आगे हज्जाज के सामने पेश कर दिया और हज्जाज ने वही किया जो उसको करना था। एक दिन उसने अपने पास रखा और दूसरे दिन हज्जाज इब्न यूसुफ ने सईद इब्न जुबैर को अपनी आंखों के सामने कत्ल करवा दिया। मेरे भाइयों, अपनी जान बचाने के लिए दो मुसलमान पुलिस वालों की जान को खतरे में नहीं डाला। इसको कहते एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए अपनी जान देने वाला। आज के इस तकरीर से हमको एक सबक लेना चाहिए कि एक मुसलमान का मकाम दूसरे मुसलमान की नजर में कितना होना चाहिए और क्या होना चाहिए, और एक मुसलमान की इज्जत दूसरे मुसलमान के लिए क्या होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है हम और आप सोचेंगे। मेरे भाइयों, मस्जिद की तामीर का मसला है, नेकियों के दरवाजे खुले हुए हैं। मैं 5 मिनट के लिए आपके इस स्टेज पर बैठा हुआ हूँ। अगर आप मेरे हाथ में भी मस्जिद का कोई ताबूत करना चाहे और आप चाहें कि जल्दी से आपके हाथ में भी देकर मस्जिद का ताबूत देकर सवाब मिल जाए, तो मैं थोड़ी देर के लिए बैठा हुआ आए। अल्लाह ताला आपको इसका अजीम अता फरमाएगा। अल्लाह ताला से दुआ करवाएगा हम तमाम मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का भाई बना दे और एक दूसरे के लिए मदद वाला बना दे, एक दूसरे की जिंदगी में वाली हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वो अपने माँ के पेट के अंदर था, तेरी माँ खाना खा रही थी। अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे पैर बना रहा था, तेरी माँ पानी पी रही थी। अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा हाथ बना रहा था, तेरी माँ चूल्हे पर चावल पका रही थी। अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, करवटें बदल रही थी, और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा दिल बना रहा था, तेरा हार्ट बना रहा था। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है फखलक फसव्वा, हमने बना सवा कर दुरुस्त भी कर दिया। वो टॉर्च जो तुम जमीन पे मारते हो तो उसकी रोशनी 100 मीटर से दूर नहीं जाती है, 200 मीटर से दूर नहीं जाती है। चाहे कितनी तेज स्पीड की टॉर्च हो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से ज्यादा उसकी रोशनी नहीं जाती है। अल्लाह ने तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे भेजे में, तुम्हारे मस्तिष्क में हजारों तारों का कनेक्शन डाला और तुम्हें 2 चमकते हुए ट्यूबलाइट, तुम्हें टॉर्च दे दी, आंखें दे दी, जिसमें 1 सेकंड के अंदर 9 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई पर चमकने वाले सूरज को देख लेती हैं, 2,40,000 मील की ऊंचाई पर लटके हुए चांद को देख लेती है। मेरे भाइयों, वो अल्लाह ये
कैसे बर्दाश्त करेगा, उसकी गैरत ये कैसे गवारा करेगी। ये सारे काम मैं रहमे मादर में मैं करूं, माँ की पिस्तान में दूध के सुराख में पैदा करूं, बच्चे के लीवर को हजम करने वाला दूध मैं दूं, बच्चा दुनिया में आए उसके लिए रोशनी सूरज की शक्ल में मैं दूं, उसके लिए ऑक्सीजन हवा की शक्ल में मैं दूं। लेकिन जब बच्चा दुनिया में वजूद में आ जाए तो कह दो ये बरेली वाले ने दिया है, ये कछोचा वाले ने दिया है, ये फुलवारी वाले ने दिया है, ये बाबा की करामत है, ये बाबा का दिया हुआ है। मेरे भाइयों, आप अपनी बीवी की इतनी सी गैरत बर्दाश्त बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो अल्लाह ताला ये कैसे बर्दाश्त करेगा। सब कुछ करूं मैं, तू मैं रहमे मादर में पानी के कतरे से लेकर 2.5 किलो का 3 किलो का बच्चा मैं बनाऊं अपनी कारीगरी, और जब पैदा हो जाए तो उस पर टाइटल दूसरे का लगाया जाए, गैर का लगाया जाए। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बेगैरती को बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए फरमाया, लोगों मेरे पास गुनाहों का समंदर भी लेकर आओगे तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शिर्क लेकर आओगे तो मैं माफ नहीं करूंगा। शिर्क करने वालों को डायरेक्ट मैं जहन्नम के अंदर डाल दूंगा, क्योंकि मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरा खुदा बना लिया था, मुशरिक ने मेरे मुकाबले में दूसरे को अपना लिया था, मुशरिक ने मेरी ताकत के बराबर दूसरे में ताकत तसव्वुर कर ली थी। मैं बेटा बेटी देने वाला हूं, मुशरिक ने यही ताकत दूसरे के अंदर भी मान ली थी। इसलिए मैं इसको कभी नहीं बख्शूंगा, कभी नहीं जन्नत में जाने दूंगा, इसको हमेशा जहन्नम में ही जलाऊंगा। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन शिर्क बर्दाश्त नहीं करते। हमें सोचना है, ये गौर करना है, ये मजहब अल्लाह ने हमें दिया है, शीतल छाया में आओ इसके। इसलिए दुनिया की हर किताब पढ़ जाइए आप, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है, तौहीद कहीं खत्म नहीं हुई है। बाइबल पढ़ो, देयर इज नो गॉड बट गॉड इज ओनली वन, एक ही है दूसरा नहीं है। देयर इज नो गॉड, कोई खुदा नहीं है, बट है ओनली वन, एक ही अल्लाह दूसरा नहीं है ही नहीं कोई। तौरात पढ़ो, यहूदियों की किताब तौरात पढ़ो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जंगल में जा रहे हैं और एक बुजुर्ग को देखते हैं कि वो अल्लाह की इबादत में लगा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, कब से अल्लाह की इबादत कर रहे हो? कहने लगा, जब से होश संभाला। कहा, क्या तमन्ना है? उसने कहा, मेरी तमन्ना यह है कि मेरी मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम से हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम हंसकर कहने लगे, मैं ही मूसा हूँ। उसने कहा, किताब दिखाओ तौरात। मूसा ने किताब दिखलाई, वो ईमान ले आया, फिर इबादत में लग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम जंगल में अल्लाह की इबादत में लगे हुए हो, मुझे कोई काम बताओ, तुम्हारे लिए कोई जरूरत हो तो। कहने लगा मूसा, 2-3 दिन से कोई खाना लेकर नहीं आया, चलो बगैर खाने के तो मैं जिंदा रह लूंगा, लेकिन प्यास बहुत लग रही है। मेरे लिए कोई पानी लाया करता था, आज वो पानी भी नहीं आया। आए मूसा, तुझे कहीं पानी मिल जाए तो ले आ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था। ये कुरान नहीं, हदीस नहीं है, तौरात कह रही है। तौरात जैसे मैं वेद पढ़ता हूँ वैसे तौरात भी पढ़ के बता रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास पानी का प्याला था, पानी का प्याला लेकर जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन पानी नहीं मिला। कुआं तलाश करते, कुआं नहीं मिला। तलाश करते 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 जरा शहर की आबादी के बाहर निकल गए, पानी मिल गया। पानी लेकर आते हैं, थोड़ी देर हो जाती है। उस बुजुर्ग में और मूसा के दरमियान 100 कदम का फासला रहता है। वो बुजुर्ग चीख कर कहता है, मूसा जल्दी आ, मेरी हलक सूख चुकी है, मेरा गला सूख चुका है, मुझे पानी पीना है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी स्पीड बढ़ाई, उस बुजुर्ग से कहा, लो मैं पानी लेकर आ गया। उस बुजुर्ग को सहारा दिया, पानी का प्याला उसके हलक तक ले गए, उसके मुंह तक ले गए, लेकिन जैसे ही पानी का प्याला उसके होंठ तक जाता है, उस बुजुर्ग की रूह निकल जाती है, बुजुर्ग का इंतकाल हो जाता है। मूसा अलैहिस्सलाम देखते हैं, इतनी मेहनत से मैं पानी लेकर आया और पानी ये पी भी नहीं सका, होंठ तक ले गए, किसका इंतकाल हो गया। अल्लाह को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बंदा जिंदगी भर उसकी इबादत करता रहा, लेकिन
आज उसने एक घूंट पानी पीने का भी मौका नहीं दिया अपने बंदे को। उठते हैं, पानी का गिलास उठाकर जमीन पर पटक देते हैं प्याला, और कहते हैं अल्लाह ये तेरा न्याय, ये तेरा जजमेंट, ये तेरा इंसाफ सही नहीं है, माफ कीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तौरात के अंदर ये जुमले लिखे हुए हैं, और किसी भी जुमलों को हूबहू वैसे ही बयान कर देना ये गलत नहीं होता है। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में तौरात कहती है कि मूसा ने अल्लाह से कहा ये तेरा इंसाफ समझ में नहीं आया, इस बंदे ने जिंदगी भर तेरी इबादत की, सजदा किया, रुकू किया, और आज तूने उसको 2 घूंट पानी भी नहीं पीने दिए। अरे उठा लेता, लेकिन पानी तो पी लेने देता। आवाज आती है, अरे मूसा मैंने उस बंदे को क्यों उठाया ये तुम नहीं जानते, तुम तो आज उस जंगल में पहुंचे हो, आज से पहले उसने तो जब से होश संभाला तब से वो मेरी इबादत कर रहा है। आज तक उस जंगल में उसको खाना कौन खिलाता था? कहा अल्लाह तू। आज तक उस बंदे को पानी कौन पिलाता था? कहा अल्लाह तू। कहा आज तक उस बंदे को खिलाने पिलाने वाला मैं था, लेकिन आज मैंने अपने बंदे को इसलिए उठा लिया है कि आज 2-3 दिन से मैंने पानी उसको नहीं दिया, 2-3 दिन से खाना नहीं दिया। तो आए मूसा, जब जिंदगी भर में खिलाता रहा, जिंदगी भर में पिलाता रहा, खाना में देता रहा, पानी में देता रहा, लेकिन आज मेरे बंदे को जब प्यास लगी तो उसने पानी मुझसे नहीं मांगा, तुझसे मांग लिया। आए मूसा, मैंने इसलिए उसको उठा लिया क्योंकि उसने पानी का सवाल मुझसे नहीं किया, तुझसे कर लिया है। आए मूसा, मैं दुनिया वालों को ये दिखाना चाहता हूँ कि देखो मूसा जैसा एक नबी है जिसको मैंने तौरात दी है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि जब तक मैं न चाहूं वो किसी को एक घूंट पानी भी पिला सके। मूसा तू नबी है, मेरा रसूल है, तेरे अंदर अगर इतनी ताकत है कि किसी को पिला सकता है तो इस मुर्दे को, इस बुजुर्ग को एक घूंट पानी पिला कर दिखा। नहीं दिखा सकता है तू। और यही मुझे दुनिया को बताना है कि नबियों में, रसूलों में भी इतनी ताकत नहीं कि वो अपनी मर्जी से एक घूंट पानी किसी को पिला सके। जब तक कि अल्लाह की मर्जी न हो तुम भी एक गिलास पानी, एक घूंट पानी किसी को नहीं पिला सकते। ये तौरात में तौहीद का जिक्र आज भी मौजूद है। क्या कहोगे इस तौहीद के बारे में? हिंदू धर्म के बारे में तो पूछो नहीं, उसके लिए तो हम जुआ तक खेलने को तैयार हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक भारत से मलेशिया चले गए, लेकिन जर्जीज तो यही रहता है। योगी को और मोदी को ललकारता भी है, जेलों में भी जाता है, जेल को ससुराल भी अब समझने लगा है। सब कुछ होने के बावजूद आज तक कोई आदमी मुझे अपने मंत्रों के बारे में ये नहीं बता सका। हाँ, इतना जरूर है कि मेरे ऊपर किसी हिंदू भाई ने आज तक केस नहीं किया है। मेरे ऊपर जितने भी केस हुए हैं वो हमारे अपने ही लोगों ने किए हैं। हमारे ही लोगों ने भड़का कर लोगों को केस हमारे ऊपर करवाए हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है, ये होता चला आया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मेरे भाइयों, घर में आग बाहर की आग से नहीं लगती है, घर में कोई चिराग चलता है तभी आग लगती है। इस घर को भी आग लगी तो घर के चिराग से ही लगी। गैर मुस्लिमों के खिलाफ मैं बोला, लेकिन गैर मुस्लिमों ने उसको अपनी अच्छाई समझकर कबूल कर लिया कि बात तो सही कर रहा है। आज तक किसी पंडित ने केस नहीं किया, केस किया तो हमारे भाइयों ने किया है। कोई बात नहीं, तुम शौक से अभी भी आजाद हो, जो चाहो करो, हम भी तुम्हें अब रोकते नहीं है, इसलिए कि किसी केस में आज तक मुझे सजा नहीं सुनाई गई है। हर केस में मैं बाइज्जत बरी होकर निकला हूँ, या तो खत्म हुआ है या कोर्ट से बाइज्जत बरी होने का फैसला मेरे हक में सुनाया गया है। हाँ, इतना जरूर कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों कि आज मैं हिंदू भाइयों से जुआ खेलने के लिए तैयार हूँ। अब आप ये मत कहना मौलाना साहब जुआ तो हराम है, क्यों? मैं इसलिए ऑफर दे रहा हूँ कि आओ रख लो, तौहीद का जितना सबूत तुम्हारी किताबों में है उतना तो हमारे यहाँ यहूदियों में और ईसाइयों में नहीं है। यहूदी और ईसाइयों में नहीं है। हालांकि तौरात का ये बहुत बड़ा सबूत है। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का हरण होता है। हनुमान और लक्ष्मण सीता को श्रीलंका से रावण के जुल्म से छुड़ा के लाते हैं। सीता जी राम के पैर छूने के लिए झुकती हैं और आशीर्वाद लेना चाहती है, लेकिन रामचंद्र जी अपने पैर नहीं छूने देते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है जो 2000 साल पहले लिखी गई थी। आजकल की रामायण तो ये अभी 100-200 साल पुरानी है। उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया।
जो वाल्मीकि जी के रामायण है, असली रामायण वो है, उसमें राम को भगवान ही नहीं माना गया और राम को भारत में पैदा भी नहीं माना गया। उसमें साफ लिखा है रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी सीता को पैर नहीं छूने दिए, उठा लिया और सीता को ललकारते हुए कहा ये क्या पाप कर रही हो? नहीं, मैं आपको प्रणाम कर रही हूँ, आपको पैर छू रही हूँ। रामचंद्र जी ने कहा राम रामाय नमः, राम रामाय सत्यमस्तु। हाय सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम है ऊपर वाला। है सीता, मैं तेरा राम हूँ, लेकिन तेरे राम का राम तो ऊपर वाला है सीता, तू अपने राम को प्रणाम मत कर, बल्कि उस राम के सामने झुक जो तेरे राम का राम है, उस राम को प्रणाम कर जो तेरे राम का राम है। यही तो कहा गया है योगी युज्जित सततमात्मानं रहस्य स्थित एकाकी अच्युतात्म निराशीर परिग्रह। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 मंत्र नंबर 10। योगी यूपी वाला नहीं, ये योगी नहीं है, ये ढोंगी है, फर्क समझिएगा। योगी कहा गया है, ढोंगी नहीं कहा गया। जब ढोंगी कहा जाए तो इसको समझना। योगी युज्जित सततमात्मानं रहस्य स्थित। जब ईश्वर की पूजा करने जाओ तो योगी बन जाओ, यानी पूरे शरीर की एक्सरसाइज, पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाए, पूरे शरीर को झुका दो। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है, किसी इबादत में नहीं होती। आप देख लीजिए, मंदिर में जाइए, हिंदू लोग क्या करते हैं, बस पूरे शरीर की एक्सरसाइज नहीं है। अब तो ये भी नहीं हो रहा है, मोटरसाइकिल में जा रहा है आप, सामने हनुमान जी की मूर्ति, 2.5 किलो की खोपड़ी बढ़ गया। अब तो कोई उतर कर हाथ भी जोड़ना गवारा नहीं कर रहा है। हिंदू भाई अगर हो तो बुरा न माने, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, वास्तविकता है। मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं, नई बीवी बैठी हुई है, हनुमान जी आगे बढ़ गया, न कोई वुजू, न कोई हाथ पैर धोना, न कुछ नहीं, बढ़ गया। ये रियलिटी है। मोटरसाइकिल भी नई है, उतरता भी नहीं चाह रहा, और नई है भी इसलिए वो भिख मंगनी है। भिख मंगनी गाड़ी समझते हो ना? अरे जो लड़की के बाप ने अपने दामाद को इंटरनेशनल भिखारी समझ के खैरात में दी है, उसको मैं बोल रहा हूँ, उस बाइक को। जितने लोगों ने अपने ससुर से जो ली है, मांग मांग के जो मोटरसाइकिल है, सब इंटरनेशनल फकीर है, इंटरनेशनल भिखारी है ये लोग। और अब जो मांगेंगे वो और बड़े होंगे, क्योंकि जानने के बाद मांग रहे हैं। तो इंटरनेशनल भिखारी अपनी बीवी को बिठाया जा रहा हूँ, बढ़ गया। अब तो ये भी नहीं हो रहा। पूरे शरीर की एक्सरसाइज सिर्फ नमाज में होती है। देखिए, अल्लाह अकबर, ये पॉजिटिव रेजेस डाउन है, पॉजिटिव, ये हाथ की एक्सरसाइज है। और ये देखिए, वैसे बहुत से लोग यहाँ भी नियत मानते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। आजकल लोगों को मिलाने की बात करना चाहिए, तोड़ने की नहीं, जोड़ना, ये वक्त की जरूरत है। जो लोग यहाँ बांध रहे हैं वो बांध रहे हैं, हम लोग यहाँ बांधते हैं, बांध रहे हैं। अब यहाँ जो हाथ बांधे जाते हैं तो उसमें वजन है, एक्सरसाइज है। आपने कभी तरावी पढ़ी होगी, इमाम साहब जब देर तक किरत करते हैं, एक पारा उनको खत्म करना है 8 रकात तरावी में, तो आपको ये आलमून तालमून समझ में आएगा। बस गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन तक वाली सही चलेगी। इसके बाद इमाम साहब हो जाएंगे राजधानी एक्सप्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, अल्लाहु ला रैब फीहि हुदल लिल्मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैब व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। आखिरी वाला जुमला खींचता हुआ नजर आएगा, युनफिकून यालमून तालमून। अब इधर नींद आ रही आदमी को, आप देखिएगा ऐसे को, इस तरह से करो। ये जो हाथ नीचे गिरा है, ये एक्सरसाइज है, इस पर वजन पड़ रहा है ऐसे। ये और जो लोग ऐसे करके ऐसे बांध लेंगे, गर्दन तो ऐसे होगी लेकिन हाथ नहीं छूटेगा। आप करके देख लीजिए, हाथ नहीं छूटेगा। क्यों? यहाँ प्रेशर नहीं है, यहाँ एक्सरसाइज नहीं है। और हिंदू धर्म में भी आप देखिएगा, मूर्ति के सामने जब कोई आदमी खड़ा होगा तो हाथ बांधेगा, लेकिन सीने पर। हम लोग ऐसे रख लेते हैं, वो ऐसे रखते हैं, लेकिन रखता सीने ही पर है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये दिल पे हाथ रखने का मकसद ये होता है कि हम दिल से क्षमा मांगने आए हैं, और जो भक्ति पूजा कर रहे हैं वो है प्रभु, हम दिल से कर रहे हैं। हम लोग भी हाथ सीने पर रखते हैं, उसका मकसद यही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और अल्लाह, मैं दिल से गवाही देता हूँ कि सारी तारीफ तेरे लिए है। और रहमान रहीम, अल्लाह, हम दिल से गवाही देते हैं कि तू बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। मालिक यौमिद्दीन, हम दिल से तुझे कयामत के दिन का पूरा पूरा मालिक मानते हैं, हर चीज दिल से। तो पूरे शरीर की एक्सरसाइज। अब देखिए, रुकू में कमर सीधी,